students, welcome to the biology class of Strategist. Today we will continue with the chapter which we have started, Heredity and Evolution. This is the third class of this chapter. So in this class, in detail we will discuss about the dihybrid cross given by Mendel. Okay, but before we proceed, I want to remind you about our social media platforms like our YouTube channel Strategist Academy. Do subscribe our channel, like our Facebook page, join our Telegram channel. The name of the channel is Strategist School 7 to 10 and the link is given here. It looks like this. And in this channel, regarding the live classes and the study materials, every updates you will be getting before time. So do join this channel, follow us on Instagram and also join us through the WhatsApp community. The number is given here. And for more updates, do visit our website www.strategist.in. Now, in Google Play Store, our free app of Strategist is available. It looks like this. It's a very user-friendly app, and through this app, the live classes are being conducted, and apart from the live classes, the recorded classes of each and every subject, these are also you will be getting it, and not only the recorded classes but also the study materials, important notes are also available. So don't delay, just download this app and install it now. This is how our YouTube channel looks like. Do subscribe our channel, and after subscribing, don't forget to hit the bell notification. Keep the notification on so that whenever any new videos will be uploaded in our channel, you will be getting the instant notification of that and you can check out the video. Now this is how our YouTube and this is how our Facebook looks like. So like us on Facebook too for being united with us. So let's start today's discussion. Earlier we have studied about the monohybrid cross by Mendel. In monohybrid we have seen that that was dealing with only one pair of contrasting traits. 7 pairs of contrasting traits are there in pea plant, जिन लोग सबके बारे में हम लोग पहले पढ़े थे in the last class कि पी प्लांट में 7 पेयर कैरेक्टर्स रहते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, टोटली कॉन्ट्रास्टिंग. ओके, सो मोनोहाइब्रिड क्यों नाम था? क्योंकि मोनोहाइब्रिड, मोनो मतलब क्या है? सिंगल, और हाइब्रिड क्या है? क्रॉस और मिक्सचर कह सकते हैं. ओके, सो सिंगल क्रॉस मतलब क्या था? वहाँ पर सिर्फ हाइट, एक ही कैरेक्टर्स को लेके हम लोग वी वर कंसर्न, राइट. सो सिर्फ हम लोग इसका टॉल फॉर्म और इसका डॉर्फ फॉर्म इसमें ही क्रॉसिंग किए थे, और उसमें कैसे F1 और F2 जनरेशन में कैसे क्या क्या प्लांट्स मिले उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, राइट. सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको कहा जा रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस, राइट. डाई मीन्स 2 एंड हाइब्रिड मीन्स अगेंस्ट क्रॉस. तो टू क्रॉस मतलब क्या? टू क्रॉस मतलब यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर इन्वॉल्व्ड. यहाँ पर सिर्फ हाइट को लेके बात नहीं करेंगे. अगर हाइट को लेके करेंगे तो इसके साथ साथ मतलब हाइट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, बट not only height but also some other characters are also included. 2 कैरेक्टर्स को लेके यहाँ पर क्रॉसिंग करेंगे. मेंडल ने जो किया था वो ही हम लोग करके देखेंगे. ओके, सो वहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो मेंडल ने जो लॉ दिए थे उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो यहाँ पर जो डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस है, वहाँ से मेंडल ने जिस लॉ को एस्टैब्लिश किया उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ independent assortment, right? So what is dihybrid inheritance? Dihybrid inheritance involves what? It involves the inheritance of 2 pairs of contrasting characteristics or contrasting traits at the same time. मतलब एक ही टाइम में 2 pairs of contrasting traits are expressed. जैसे कि यहाँ पर height है, seed का shape है, color of the seed, color of seed coat, okay? पॉड का शेप, पॉड कलर एंड द पोजीशन ऑफ द फ्लावर. ये सब जो कैरेक्टर्स हैं 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, इन 7 कैरेक्टर्स में से 2 विल बी इन्वॉल्व, 2 कैरेक्टर्स विल बी इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. ओके,
और एक ही टाइम में होना चाहिए। एक ही टाइम में दो कैरेक्टर्स एक दूसरे को कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है ये हम लोग देखेंगे। तो टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, दीज आर चोजन बाय साइंटिस्ट मेंडल एंड दीज वर, क्या था, शेप था और कलर ऑफ द सीड। मतलब ये दोनों में से, ये सातों में से जो दो कैरेक्टर्स उन्होंने चूज किया था वो दो कैरेक्टर्स हैं शेप एंड द कलर ऑफ द सीड्स। सो वन वॉज राउंड येलो सीड, मतलब ये कलर का देखो राउंड और येलो, इसमें कलर का येलो है और शेप का राउंड है, मतलब दोनों कैरेक्टर एक ही सीड में देखा था उन्होंने, राइट। ये देखो राउंड, ये दो कैरेक्टर राउंड एंड येलो, और एक जो सीड था और एक जो प्लांट था उसमें कैसा सीड था, रिंकल्ड एंड ग्रीन, कलर के लिए ग्रीन एंड शेप के लिए रिंकल। So in order to trace the inheritance of the two pairs of contrasting traits, what Mendel basically did, Mendel crossed the pea plants having the round yellow seeds with the pea plants having the wrinkled green seeds and noted their occurrence in the succeeding generation of the pea plant. And what are the succeeding generation? After pea generation, what comes? It comes first filial generation or F1 generation, and after that it is followed by the next or second filial generation or represented as F2 generation. All right. Next, what Mendel made the following observation, how he observed, what he basically did and how he got this. So दो types of seeds में उन्होंने जो क्रॉसिंग किया था, तो एक था पहले राउंड येलो और ये क्या कैरेक्टर था, ये था रिंकल एंड ग्रीन। सो रिंकल, दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय corresponding gene, that is if round is represented by capital R, wrinkle will be expressed as small r, and if yellow is represented as capital Y, so green color will be represented as the corresponding gene of capital Y, that will be the small y. Okay, so Mendel first crossed the purebred pea plants having the round yellow seeds with the purebred pea plant having the wrinkled green seeds and found that only round yellow seeds were produced in the first filial generation or the F1 generation. तो ये है पेरेंट जनरेशन का क्रॉस, जिसमें ये क्रॉसिंग करने के बाद उनको क्या मिला था, जितने भी सीड्स मिले थे ऑल वेर राउंड एंड येलो, राइट, ये कैरेक्टर थे। नो रिंकल ग्रीन सीड्स वेर ऑब्टेन्ड इन द F1 जनरेशन। तो ये हो गया F1 जनरेशन। इस जनरेशन में कोई भी, ये दूसरा जो पेरेंट था, मतलब जो रिसेसिव पेरेंट था, दैट इज द डोमिनेंट पेरेंट, राइट, एंड दिस वन इज द recessive था। ओके, सो नो रिंकल सीड्स वेर ऑब्जर्व इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में यहाँ पर आप लोग देखो कि सारे जो सीड्स हैं, जो कि मैंने कहा, सारे राउंड और येलो है, रिंकल ग्रीन इस कैरेक्टर का कोई भी सीड नहीं देखा गया था, राइट। एंड इससे उन्होंने कंक्लूड क्या किया था कि दैट द राउंड शेप एंड द येलो कलर ऑफ द सीड, मतलब ये जो दो कैरेक्टर्स है, ये जो दो ट्रेट्स है, these were dominant traits over the wrinkle shape and the green color of the seed। जैसे मैंने कहा ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया, इसलिए ये जो है डोमिनेंट दो कैरेक्टर्स है वो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, और it was been able to suppress the character of the recessive and the wrinkle, these characters. Next, when F1 generation of the pea plants having the round yellow seeds were undergoes crossbred by self pollination। तो F1 से F2 हम लोगों को कैसे मिलता है, F1 में जो प्रोडक्ट मिला उसी को सेल्फिंग करके, मतलब उसी के जैसा और एक F1 जनरेशन का प्रोडक्ट के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग होता है, राइट। सो क्या मिला हम लोगों को, RRYY, इसके साथ और एक RRYY का क्रॉस हुआ। तो क्रॉस करने से जो मिला, दैट इज फाउंड और शोन इन द चेकर बोर्ड।
तो इसमें जो गैमेट प्रोड्यूस हुआ वो 4 कॉम्बिनेशन का गैमेट प्रोड्यूस हुआ। वो कैसे हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। एक कैपिटल आर के साथ एक कैपिटल वाई, दिस विल बी वन कॉम्बिनेशन। नाउ वन कैपिटल आर विथ वन स्मॉल वाई, नाउ अगेन वन स्मॉल आर विथ वन कैपिटल वाई, और here the 2 will be small। और यहाँ भी क्या होगा, here also this will be same, capital R capital Y, capital R small y, then small r capital Y, and last one small r small y. So here only the presence of what, these all are gametes। okay, ये gametes जो है these were involved in the F2 generation। So then 4 types of seeds having different combination, जो कि मैंने आप लोगों को करके दिखाया कि ये 4 कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, एक दूसरे के साथ कोई सिमिलैरिटी नहीं है। These were formed and obtained in the F2 generation। ये चारों कॉम्बिनेशन मिला था और टोटल प्रोजेनी कितना मिला हम लोग को F2 जनरेशन में, टोटल 16 प्रोजेनी मिला। देखो ये बॉक्स को काउंट करो, these were the 16 progenies found in the F2 generation। okay, Mendel collected a total of 556 F2 seeds। F2 जनरेशन में उन्होंने 556 सीड्स को कलेक्ट किए थे एंड ही काउंटेड देम शेप वाइज। ये जो 4 कॉम्बिनेशन मिला, 4 कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही स्टार्टेड टू काउंट इट एंड द टोटल नंबर ऑफ सीड्स वर हाउ मच, 556। ओके, सो 556 में जो रिजल्ट आया उसमें से राउंड येलो जो सीड था, मतलब आर वाई कैरेक्टर का, वो था 315। ओके, नेक्स्ट राउंड ग्रीन सीड, मतलब राउंड के लिए आर हो गया, ग्रीन के लिए हो गया स्मॉल वाई। ये जो कॉम्बिनेशन था उसमें से मिला 108 नंबर ऑफ सीड्स। नाउ रिंकल एंड येलो, रिंकल मतलब स्मॉल आर, येलो मतलब कैपिटल वाई। सो इस कैरेक्टर का जो सीड था वो हो गया 101। और रिंकल ग्रीन सीड्स, रिंकल हो गया स्मॉल वाई, ग्रीन हो गया स्मॉल रिंकल स्मॉल आर, ग्रीन स्मॉल वाई। सो रिंकल ग्रीन जो सीड था वो कितना मिला, वो मिला 32। सो यहाँ से उनको जो रेशियो मिला, द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड विच कैन बी रिटन एज द फेनोटाइपिक रेशियो कितना था फिर, ये 315 is to 108 is to 101 is to 32। ओके, सो इस सबको 32 से डिवाइड करने से ऑलमोस्ट जो मिला दैट इज कमिंग 9 is to 3 is to 3 is to 1। ये 101 108 ऑलमोस्ट बहुत पास पास है, सिमिलर है, इसीलिए इसको सेम कर दिया गया ऑलमोस्ट। ओके, सो द रेशियो, द फेनोटाइपिक रेशियो विच appeared or which we have obtained, that is 9 is to 3 is to 3 is to 1। okay, and this is known as the dihybrid ratio, जो कि किस जनरेशन में मिला, F2 जनरेशन और सेकेंड filial generation। okay, next Mendel observed that he had started with 2 combinations of characteristics in the seeds, round yellow and the wrinkle green। So the 2 new combinations which were found in the F2 generation, these were round green and wrinkle yellow। तो फर्स्ट जो जनरेशन था, पेरेंट जनरेशन, जहाँ पर उन्होंने शुरू किया था सीड्स का जो कैरेक्टर्स से, वो था राउंड येलो यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, और रिंकल ग्रीन यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई। इससे शुरू किया था उन्होंने। उसके बाद और कुछ 2 नया कॉम्बिनेशन, नया कैरेक्टर जो सामने आया आफ्टर द F2 जनरेशन और इन द F2 जनरेशन, जो कि था राउंड के साथ ग्रीन। राउंड के साथ पहले येलो था और राउंड येलो जो था वो F2 जनरेशन में तो था ही। ये जो कैरेक्टर्स से उन्होंने पहले शुरू किया था, दैट वर देयर प्रेजेंट इन द F2 जनरेशन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट what new characters were concluded in the F2 generation, these were the round green और wrinkle yellow। तो ये हो गया राउंड येलो, ये हो गया
wait a minute. Okay. Second one, wrinkle and green. ये वाला, ये जो कैरेक्टर है ये ग्रीन है, वह राउंड है, राउंड एंड ग्रीन. और ये रिंकल एंड येलो, ये रिंकल है, येलो है. ये चारों जो है, ये चारों कॉम्बिनेशन उनको F2 जनरेशन में मिला. ओके. So on the basis of the observation, Mendel basically concluded that though the two pairs of original characteristics, that were the seed shape and the color of the seed, combine in the F1 generation, but they separate and behave independently in the subsequent generations. मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही सीड में था. मतलब कलर का भी जो कैरेक्टर है, कलर was also expressing itself and the shape was also expressing itself. दोनों एक साथ ही जो है वो एक ही कॉम्बिनेशन में था. बट उसके बाद जो नया कॉम्बिनेशन मिला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर एक कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली, राइट. सो F1 जनरेशन में कॉम्बिनेशन था, लेकिन उसके बाद वो सेपरेटली बिहेव किया एंड इंडिपेंडेंटली वेर प्रेजेंट इन द सब्सिक्वेंट generations. So the results of dihybrid cross, this idea enabled Mendel to formulate his second law, that is known as the law of independent assortment. So Mendel का जो law of independent assortment है और the second law of inheritance जो है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि in the inheritance of more than one pair of traits in a cross, simultaneously the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes. मतलब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जाता है तब अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करता है. ऐसा नहीं है कि एक प्लांट में सिर्फ कलर जो है, सीड का कलर एक्सप्रेस हुआ लेकिन हाइट एक्सप्रेस नहीं हुआ. अगर यहाँ की बात करें, यहाँ जो कैरेक्टर को लेके हम लोगों ने काम किया कि कलर एंड द शेप, राइट. तो मान लो कि येलो या ग्रीन कलर तो शो किया लेकिन कोई शेप नहीं दिखाया, या फिर राउंड और रिंकल शेप तो दिखाया लेकिन कलर वाज नॉट एक्सप्रेस्ड. इज इट पॉसिबल? हम लोग जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो हर एक तरह से जो जितने भी कैरेक्टर्स हम लोगों का है वो एक ही साथ मिला के हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. वी डोंट इवन नो इट, राइट. सो वाई दिस इज पॉसिबल? बिकॉज हर एक जीन जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. वो these characters are independent of each other for expressing in generation after generation. इसीलिए law of inheritance, law of independent assortment जो है वो that was obtained after the F2 generation in the dihybrid cross. Mendel he has postulated this law. Okay. Now we want to explain it. What will be the explanation of dihybrid inheritance? In the dihybrid cross, the parent plants having the phenotype, the round yellow seeds, they had the factors, inheritance and the gene combinations, right? Capital R, capital R, capital Y, capital Y. These were the, this was the character, right? Where R, these are the dominant and for round shape, Y is the dominant. These were the dominant genes. On the other hand, जो कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई वहाँ जो था वो जो वहाँ पर जो दो जीन थे वो दोज वेर रिसेसिव एंड वेर सप्रेस्ड बाय द फर्स्ट टू जीन्स. नाउ वी कैन शो दैट द dihybrid क्रॉस बाय द चेकर बोर्ड. दिस इज व्हाट चेकर बोर्ड, जो कि हम लोगों ने पहले ही किया था. ये जो कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखा है, दीज वेर द गेमेट्स फाउंड, राइट. गेमेट्स जो है वो गेमेट्स मिला था इन द पेरेंट ऑफ F1. तो यहाँ से जो है ये क्रॉसिंग करके हम लोगों को कितना प्रोजेनी मिला? F2 में 16 प्रोजेनी, जिसमें से 9 जो था, 9 वेर राउंड एंड येलो. ओके. 3 जो था राउंड एंड येलो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. 3 जो था दैट वेर राउंड एंड ग्रीन, राइट.
small y, round and green. So round and green, there were 3, 1, 2, 3. Then 3 were wrinkle and yellow. Wrinkle and yellow were 1, 2 and 3. And 1 left, what was wrinkle and green, this one. So in this way the ratio comes. Okay, so F2 ratio में क्या आ गया, जो कि मैंने अभी लिखा था, the ratio comes like 9:3:3:1. So this result is the same as that is obtained by the Mendel through his experiment. Okay, an amazing thing that about Mendel's work is that he worked out the underlying rules of the inheritance before any knowledge of DNA, chromosome as well as genes. तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है मेंडल की करियर के लिए और इन द करियर ऑफ जेनेटिक्स ऑल्सो. दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑन द अदर हैंड दिस वॉज वेरी शॉकिंग टू, बिकॉज क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, इन सब के बारे में बिना आइडिया के हम लोग समझ भी नहीं सकते इस बात को. और द कॉन्सेप्ट्स वर नॉट established or discovered or explained at that time, but still Mendel was so lucky and he was so talented that जो भी काम उन्होंने किया था वो ये सब जानने के बाद भी बहुत जन को समझ में नहीं आता है. बट इसीलिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये जो जीन था, जीन का कॉन्सेप्ट था, उनको लगा कि समथिंग इज देयर, सम एस्पेक्ट इज देयर फॉर विच दिस इज हैपनिंग, एंड दैट एस्पेक्ट ही हैड नेम्ड एज फैक्टर्स. तब जीन डिस्कवर नहीं हुआ था, क्रोमोसोम, डीएनए, किसी के बारे में कोई भी आइडिया, कोई भी नॉलेज नहीं था. इन स्पाइट ऑफ दैट ही बेसिकली टर्म दीज थिंग्स एज फैक्टर्स. फैक्टर्स कहा उन्होंने, और उसी की वजह से ये सारे जो जेनेटिक्स का जो स्टार्ट है थ्रू द हेरिडिटी, इट वाज डन. ओके, नाउ सम सैम्पल प्रॉब्लम्स विल सॉल्व. What do the progeny of the tall plant with the round seed and the short plant with the wrinkle seed look like, and why? So what will be the answer? The progeny of the tall plant having the round seeds were crossed with the short plants having the wrinkle seeds will be what? Will be the dominant characters. F1 generation में dominant character मिलेगा. That means the tall plants for the expressing the tallness and round seed expressing the round shape of the seeds, because these were the dominant characteristics. And on the other hand जो shortness है और जो wrinkle shape है seed का, these are the recessive traits. इसीलिए dominant express हुआ और recessive नहीं हो पाया. And the second question is, what happens when the F1 progeny obtained above are used to produce the F2 progeny by self pollination? Selfing से ही बनता है, तो इसका आंसर क्या होगा? When the F1 progeny was crossed, was undergone self pollination, then we will get what? 4 types of progeny in the F2 generation, because this is a 4 मिलेगा हम लोगों को, 4 progeny we will get, and out of this 4 progeny 2 will be having the similar types of the parent. जैसे कि हम लोगों को मिलता है F2 में टोटल आउट ऑफ 16 मिलता है, लेकिन उसमें टाइप कितना रहता है? 4 टाइप, 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर सीन, बिकॉज बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में सिमिलैरिटी भी मिलता है, राइट? सो इसमें से क्या होगा, जो 4 F2 में मिला है उसमें से 2 पेरेंट से सिमिलर होगा और 2 नया कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू कॉम्बिनेशन आएगा. तो उसमें F2 प्रोजेनी में 9 जो प्रोजेनी होगा, 9 प्रोजेनी विल बी द पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द टॉल प्लांट, टॉल हाइट प्लांट एंड द राउंड सीड्स. और 3 प्रोजेनी क्या होगा? टॉल प्लांट्स विद द रिंकल सीड. बाकी 3 प्रोजेनी जो है उसमें शॉर्ट हाइट प्लांट रहेगा विद द राउंड सीड, और एक प्लांट जो रहेगा उसमें शॉर्ट प्लांट्स विद द रिंकल सीड. सो Mendel, though he studied the inheritance of characteristics by using the plants, but the rules for the inheritance of the traits given by the Mendel, these are also applicable for the inheritance of the inheritance trait in case of animals. So it's interesting to know that human genetic also, it also in many cases it follows the Mendelian principles. So Mendel का जो principle है वो सिर्फ plant में ही नहीं, plant पे उन्होंने दिखाया था, but it was testified and proved that animals के लिए भी this is applicable. All right. Now this is another question which we have to solve. A blue color flower plant denoted by capital B is crossbred with that of the white color flower plant denoted by small b. So
from this data, from this information, we have to solve the following question. So let's solve the cross first. So पहले क्या है, पहले कैपिटल B के साथ क्रॉस क्या होगा, स्मॉल b, राइट. सो कैपिटल B, ये क्या जनरेशन आ गया, P जनरेशन और पेरेंट जनरेशन, राइट. कैपिटल B क्या है, दिस इज अ ब्लू फ्लावर और स्मॉल b इज द वाइट फ्लावर. ओके, नो प्रॉब्लम. सो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट इसमें जो ये एक जीन है, ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, तो ये एक दूसरे से पहले अलग हो जाएगा. कैपिटल बी ये अलग हो गया एंड दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड एलील्स और गैमेट्स, राइट. अब क्या होगा, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल बी स्मॉल b और इसके साथ इसका होगा स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b. तो इस ये जनरेशन जो है, ये जनरेशन क्या हो गया, F1 जनरेशन. फर्स्ट विल कंप्लीट द क्रॉस, देन विल रीड द क्वेश्चंस. ओके, सो ये जो F1 में जो कैरेक्टर्स आया है, F1 में कैरेक्टर क्या आएगा, ये सारा आया क्या, ब्लू फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स वेर ब्लू, राइट. सो इसमें से जो है कैपिटल B, मैंने क्या कहा था, कैपिटल लेटर जो है, कैपिटल लेटर जो जीन रिप्रेजेंटेड होगा कैपिटल लेटर से, दैट विल बी डोमिनेंट. सो हियर ब्लू कलर इज, ब्लू फ्लावर जो है वो डोमिनेंट है, राइट. ब्लू कलर है, डोमिनेंट है. तो यहाँ पर इस जीन में देख रहे हो कि सारे ब्लू फ्लावर्स क्यों हैं, क्योंकि इसमें से कैपिटल ब्लू विल बी एक्सप्रेस्ड एंड स्मॉल ब्लू, सॉरी कैपिटल ब्लू जो है B जो है वो एक्सप्रेस करेगा, ब्लू कलर मतलब एक्सप्रेस होगा, और वाइट कैरेक्टर जो है मतलब जो रिसेसिव जीन है दैट विल बी सप्रेस्ड, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द कलर ऑफ द फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन देयर F1 जनरेशन. तो ये F1 जनरेशन में है, F1 जनरेशन में हम लोगों ने फ्लावर्स का क्या कलर देखे, ब्लू कलर. सो द फर्स्ट आंसर विल बी, आंसर ऑफ A विल बी ब्लू कलर फ्लावर, राइट. Now talking about F2 generation, so we have to solve it. So F2 में हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर कैपिटल B स्मॉल b ये जो है इसके साथ हम लोग क्रॉसिंग करते हैं, कैपिटल B स्मॉल b ऐसे क्रॉसिंग करेंगे, राइट. तो इससे क्या होगा, इससे क्या बनेगा, ये अलग हो जाएगा और इससे बनेगा कैपिटल B स्मॉल b, here also कैपिटल B स्मॉल b. अब ये चेकर बोर्ड बनाते हैं, राइट. मेल फीमेल. सो दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस वन थर्ड एंड दिस इज द लास्ट वन. तो ये क्या होगा, ये ब्लू, यहाँ भी ब्लू, दिस इज ऑल्सो ब्लू एंड दिस इज वाइट, राइट. तो दिस इज द F2 जनरेशन. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ द वाइट फ्लावर इन द F2 जनरेशन इफ F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन किया गया. तो यहाँ पर परसेंटेज कितना होगा, ये आउट ऑफ 4, यहाँ पर F2 जनरेशन में वाइट फ्लावर कितना है, 1 आउट ऑफ 4 मीन इट कम्स 25%, राइट. तो आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द परसेंट विल बी 25 एंड स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो इन द कैपिटल B एंड कैपिटल B स्मॉल b. तो कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B इज टू कैपिटल B स्मॉल b, इसमें रेशियो कहा गया. तो रेशियो क्या होगा, कैपिटल B मिला 1 और कैपिटल B स्मॉल b मतलब जो हाइब्रिड है वो कितना मिला, 2 मिला. सो द रेशियो विल बी 1:2. So here the answer will be 1:2. Okay.
So this is all about today. See you in the next class. Thank you.